next topic is the back and the scapular region. You have already completed the axilla, yes, including the brachial plexus and the contents and the boundaries of axilla, which includes the axillary artery and axillary nerve as the main content. Yes or no? Yes. So you must be having an idea about these structures, which are the neurovascular bundles related to the axillary portion. We'll begin now. Before starting the next region, that is the arm, we'll first do the back portion, that is the region of the back, which is related to the upper limb. ठीक है, इसकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैक का डिसेक्शन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मसल लेयर पहले आएगी, कौन सी मसल लेयर उसके बाद आएगी, एंड व्हाट ऑल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन विच यू नीड टू बी प्रिजर्व्ड. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. So we'll start with this topic. Before beginning the muscular structures related to the back, first let us have a little idea related to the bony landmark. ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं. See this picture. You can see here the bony landmarks which are related to the region of back, which we can palpate once we place the body in which position? कौन सी पोजीशन में बॉडी को प्लेस करेंगे? प्रोन पोजीशन. First you place the body in the prone position and then you will start dissecting the back. Before starting with the dissection, every time remember that we will first locate some bony landmarks, that is the surface marking of the body. ठीक है, तो यहाँ पे ये bony landmarks आपको दिख रहे हैं. These landmarks are also having some landmarks which are related to the region of head and neck, which is included in the region of back also. Why? Because these structures are important, you can say reference points for origin of the muscles of the back. ठीक है, तो ये जो point आपको दिख रहा है, this is known as external occipital protuberance, which is located over here in the occipital bone of the skull. Then you can see over here the nuchal lines. These are the nuchal lines, superior, inferior and highest nuchal lines. So this is the superior nuchal line which is lying in close proximity with the external occipital protuberance. This will be acting as a landmark in the origin of some muscles. Okay, that's why I am discussing about it. Then here this is the nuchal furrow. This entire is the nuchal furrow which is extending up till the first cervical vertebra. Yes, that is the C1 vertebra, C2 vertebra, C3, C4 and all the cervical vertebrae will be covered. Here is an extension of a very important ligament which is covering the entire nuchal furrow and is attached to the spines of all the cervical vertebrae, including from C1 and last till C6, not C7, till C6, that is ligamentum nuchae. This word you will hear repetitive times once we discuss the muscles of the back, because again this ligament is acting as a reference point for attachment of muscles. ठीक है, इसके बाद में अब हम आ जाओ थोरैक्स के रीजन में. ये पूरा थोरैसिक रीजन है. यस, पेक्टोरल रीजन जब आपने पढ़ा था, इट इज समवॉट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है थोरैसिक रीजन का. यहाँ पे आपको T2 वर्टिब्रा की स्पाइन दिख रही है, थोरैसिक 2 की. यू कैन क्लियरली सी स्पाइन ऑफ थोरैसिक 3 वर्टिब्रा एंड यू कैन सी 2 prominent landmarks in the form of a bone, that is the scapula. ठीक है, scapula is placed posteriorly over the rib cage. This you all know. You know the location. But what landmark should be remembered? First of all, the spine of the scapula can be easily palpated. Even in the living individual, you can palpate. What else you can palpate apart from the spine? You can palpate the medial border of the scapula. You can palpate the inferior angle of the scapula. And this is the cervical 7 vertebra which can be easily palpated. And you can count the vertebrae on the basis of their spinous process. Okay, here is the 7th and 8th rib impressions which you can see on the posterior aspect. So all these are related with the landmarks of the back. Going down, you can see the iliac crest on the back. Yes, impression of the 12th rib may or may not be seen, it's not necessary. Here you can see the S2 spine. Okay, so these are some landmarks which we should remember once we will begin with the muscles, attachment of the muscles. ठीक है, इसके बाद next आता है, जैसे ही बैक को देखते हैं स्किन दिखती है. You will reflect the skin, yes or no? For dissection we will first of all reflect the skin
and after reflecting the skin we'll see the superficial fascia, that is the first layer. In the superficial fascia, what you will observe? You will observe some cutaneous nerves and arteries. If we talk about the cutaneous nerve of the back, it is not so important in comparison to the cutaneous nerve of other regions of the body. ठीक है? तो इसके अंदर generally posterior rami of the thoracic spinal nerves आता है, जिसमें से कुछ होती है medial और कुछ होती है lateral. So up to T6, these are posterior rami of medial cutaneous nerves of the back, and then there will be the rest will be the lateral cutaneous nerve. As such, no significance or importance, so we just exclude this and we then move to the next layer, which is the layer of the deep fascia and the layer related to the muscles, which is adhere to the muscle. So next comes the muscular layer. So muscular layers include two sets of muscles. If we talk about specifically scapular region or if we talk specifically about the back, ठीक है? पहले हम बात करेंगे back muscles की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत important है, not only for the region of upper limb, it is also responsible for its importance in other regions of the body like the thorax and abdomen. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि upper limb में ये muscles पढ़ रहे हो, उसके बाद जब thorax या abdomen आता है तो आप भूल जाओगे. No, you should remember these muscles every time we talk about the back. ठीक है? तो इस set of muscle को क्या कहा जाता है? Posterior axio-appendicular muscles. What is the meaning of axio-appendicular? Means a muscle which is connecting the axial part of the skeleton with the appendicular part. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी muscles जो vertebral column से किसको connect करेंगी? Scapula को. Because scapula is a girdle. It is a part of pectoral girdle which is then connected with the upper limb. ठीक है? तो पहला सेट है posterior axio-appendicular muscles, the muscles which are connecting the scapula to the vertebral column. Okay, so you can see this picture and we can line out the muscles. So the muscles are basically 5 in number. We have divided them into two categories. ठीक है? पहली category है superficial group of muscles which are located in the first layer. As soon as you remove the superficial fascia, you will see the first layer of muscles. Then after removing the first layer of muscles, we'll go to the deep muscles, that is the second layer of the muscle group. In the first layer, we will see two important and very big muscles. Can you see this brown muscle? This is trapezius. क्या नाम है इसका? Trapezius. It is the muscle of the first or the superficial layer. And below this, you can see another yellow colored muscle in the picture. This is latissimus dorsi. ठीक है? ये दोनों की दोनों जो मसल्स हैं आपकी बैक की prominent muscle है, these are also known as postural muscles because they are maintaining the posture of the body. Is it clear? So these are the two muscles in the first layer. इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद अब मैंने इस साइड शो किया है, यहाँ पे हमने इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया है, हटा दिया है. ठीक है? इसके बाद हमें नेक्स्ट लेयर दिख रही है, डीप लेयर ऑफ मसल्स, एंड इट इंक्लूड 3 मसल्स. You can see this greenish shaded color muscle, levator scapulae. Then you can see the blue shaded 2 muscles in which they are located in a set. Set का मतलब क्या होता है? एक ही नाम की मसल है जिसका एक काउंटर पार्ट है. मतलब for example rhomboideus major, so there must be a minor also. समझ रहे हो? ऐसे आप बहुत सारी मसल्स पढ़ोगे, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. Yes, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर. अगर कहीं भी किसी मसल के आगे मेजर लगा हुआ है, इट मींस उसका काउंटर पार्ट है, इट इज माइनर. तो सेम वेज यहाँ पर ये जो 2 मसल्स दिख रही है, इसमें ये जो स्मॉल वाली है, दिस इज rhomboideus minor, and below this you will see the large one which is rhomboideus major. Is it clear? So ये सारी की सारी मसल्स हमारी कौन सी मसल बनती है? Axio-appendicular muscles of the back. So we need to understand now what? All the important points related to the muscles, like the origin of these muscles, insertion of these muscles, then what else? The nerve supply and the action. ठीक है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, not only for this class, for remaining class which you are attending, related to any limb or any body wall structure जहाँ पे muscles हैं. जिस भी सेक्शन की क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल आज का ये टॉपिक है बैक एंड स्कैपुलर रीजन, टुडे ओनली मेक इट अ पॉइंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास एंड व्हेनेवर यू गेट अ फ्री टाइम, जस्ट मेक अ कॉलम
in your register. Put the register in landscape mode. Landscape में रखकर उसमें 4 columns बनाओ, origin, insertion, nerve supply and action, and write down the name of the muscles which you have studied the same day. Like that you can remember all the muscles which are taught simultaneously. Otherwise जब आप लास्ट में बैठोगे पढ़ने तो इतनी मसल्स होंगी that you are not able to remember the origin and insertion. याद ही नहीं रह पाएगा, सब मिक्स मैच हो जाएगा, वो आप मत करना. दिस इज अ सजेशन फॉर यू और यू कैन जस्ट कंसिडर दिस एज एन एडवाइस. जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट होता है इमीडिएटली सेम डे आप एक कॉलम बनाओ, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन का. जैसे आप अपने बचपन में खेलते थे ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, बस उसी की तरह. अब क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो अब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग तो खेलेंगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन. So from today onwards, you will make the columns for origin, insertion, nerve supply, action. Is it clear? क्योंकि आज बहुत सारी muscles है, हमें पढ़नी है जो, ठीक है? Is it clear? So we'll move to the first layer, that is the trapezius. Okay? So you can see over here, this is the trapezius muscle. What is the shape of the muscle? नाम से क्या समझ में आ रहा है? It is having a trapezoid shape. Means it is having 4 sides, quadrangular, somewhat. ठीक है? So trapezius is the name because of its shape, and it is a very wide muscle. It is a very big muscle, and this muscle is extending on the entire back. पूरी back में दोनों साइड का अगर हम कवर करते हैं तो पूरी back को ये कवर करती है. ठीक है ना. ओरिजिन इसका बहुत सारे पॉइंट से है, आपको याद रखना पड़ेगा. पहला ओरिजिन ऑक्सीपिटल बोन से रहेगा, जिसका मेन पॉइंट है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, which I already showed you initially. Then it is also having its origin from the superior nuchal lines, which are just adjacent to the external occipital protuberance. In the picture also you can see, this is external occipital protuberance, this is the superior nuchal line. ठीक है. इसके अलावा कहाँ से होगा origin? Ligamentum nuchae. This entire is the ligamentum nuchae. यहाँ से भी इसका origin है. Then it is taking origin from the spine of 7 cervical vertebra. This is the spine of 7 cervical vertebra, which is also giving origin to the trapezius. Then spine of all the thoracic vertebrae. जितने भी thoracic vertebrae हैं, कितने होते हैं? 12. तो 12 thoracic vertebrae की जो spine है, उन सबसे भी इसका origin है. तो you can just imagine कि इसका जो origin है वो कितना wide है और ये कितनी लंबी muscle है जिसका extent है. Who is using mobile phone? Stand up. Why you are using mobile phone to click the picture? Is it allowed in the class? परमिशन है आपको मोबाइल फोन यूज करने की? नहीं है. ओपनली यू आर यूजिंग विदाउट एनी फियर ऑल्सो. व्हाट आई टोल्ड इन द इनिशियल डेज ओनली, नो मोबाइल फोन अलाउड इन द थ्योरी लेक्चर्स और द डीएच. क्या विजिबल नहीं हो रहा है? तो अब इसके लिए तो एक लेटर लिख कर दो, अगर विजिबल नहीं है कि एक यहाँ पर भी इंस्टॉल करें, क्योंकि होना तो यही चाहिए कि यहाँ पर भी चलना चाहिए. अब यहाँ नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम है. मोबाइल फोन यूज करना इज नॉट एन सॉल्यूशन ना. एक बात बताओ, प्लीज बी क्वाइट. अगर आप इसकी पिक्चर क्लिक कर लोगे तो आप उसमें बैठ के पढ़ोगे क्या? अभी व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एबल टू सी, देन मेक एन अरेंजमेंट. आप इतनी सारी सीट्स वेकेंट है, यू कैन ऑक्यूपाई देम ऑल्सो. कम इन फ्रंट, आ जाओ, कम इन फ्रंट. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डिस्कस. This topic is not a joke. You know that. You are not supposed to use mobile phones during the lectures or the DH. This is a very serious issue और इस पे seriously action हो सकता है. So it's better don't do that again. इसे warning समझ लो starting में. अगर मैं आपको starting में बोल रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ, बाद में मैं आपको warn करूंगी उस चीज के लिए, and then there will be a complaint. So don't do that. अगर आपको कोई problem है, you can stand and ask. But don't use mobile phones, and please stop discussing and talking during the lecture hours, because it is very disturbing when you speak in between and it breaks our concentration because we are teaching you. You are not standing over here, I am standing over here. So it's better maintain the decorum of the lecture theater. ठीक है? तो इसका जो extent है बहुत wide है. इसके अलावा ये जितनी भी spine है इन पे attach होते हैं supraspinous and infraspinous ligaments. तो supraspinous ligaments भी साथ में इसको अटैच होने का एरिया प्रोवाइड करते हैं. So this is the extent of origin of trapezius. Insertion कैसे हो रहा है? आप देख सकते हो कि मसल बहुत ज्यादा
बड़ी है तो अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्ज्ड, कन्वर्जेंस हो जाएगा and the entire muscle will attach on certain landmarks related to clavicle and scapula. ठीक है, तो इसके जो फाइबर्स हैं वो डिवाइड हो गए कैटेगरीज में, ऊपर वाले अपर फाइबर्स, बीच वाले मिडिल फाइबर्स और नीचे वाले लोअर फाइबर्स. अपर फाइबर्स विल गेट इंसर्टेड इनटू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लैविकल. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यस और नो? तो इसलिए हम आपको मसल्स पहले पढ़ाइए, सॉरी बोन्स पहले पढ़ाइए. क्यों पढ़ाइए? ताकि जब आपके अटैचमेंट्स आएंगे ड्यूरिंग द थ्योरी लेक्चर तो आप को रिलेट कर सकोगे, यस दैट दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डीएच. ठीक है, तो आपने क्लैविकल पढ़ा है, क्लैविकल के अटैचमेंट में ट्रेपेजियस का था क्या? यस, so that is the same. It is attached to the posterior border of lateral third of clavicle. Then middle fibers, they are getting attached to the medial border of acromion and upper lip of crest of spine. तो acromion process के medial border पे और जो spine है उसके upper lip पे, crest of the spine है उसके upper lip पे. तीसरा attachment कहाँ होगा lower fibers का? They will again attach to the spine of the scapula, but this time on the medial end of the spine of the scapula. तो upper lip and medial end of the spine of scapula is completely occupied by the attachment of the trapezius muscle. ठीक है, इस पिक्चर में आपको ट्रेपेजियस के साथ में लैटिसिमस डॉर्साई का भी दिख रहा है, तो फर्स्ट वील डू दैट. ये एक और पिक्चर है, आप देख सकते हो. ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे. तो नर्व सप्लाई इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम टू नर्व्स. ठीक है, सिंस दिस मसल इज अ वाइड मसल, इट इज हैविंग टू नर्व्स व्हिच आर सप्लाइंग इट. One nerve is basically giving motor innervation and the rest is giving the sensory or proprioceptive innervation. ठीक है, because this is a muscle of body wall. ठीक है, तो मोटर जो इनोवेशन है वो किससे आ रहा है? स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी स्पाइनल नर्व विच इज द 11th cranial nerve. 12 cranial nerves होती है बॉडी में, yes? उसमें से जो 11th cranial nerve है, it is having two components, spinal and accessory. तो जो spinal component है that is providing the motor supply to the trapezius nerve. And what about the sensory supply? It is again coming from the ventral rami of C3 and C4 spinal nerve. So cervical 3 and cervical 4 spinal nerve, anterior rami or ventral rami is providing the sensory supply to the trapezius. Is this clear? ये कई बार वाइवा में पूछा जाता है. Okay, now coming to the action of the trapezius. तीनों fibers अलग अलग action में help करेंगे. Upper fibers act along with another muscle which is a deep muscle of the same group, levator scapulae, to elevate the scapula. ठीक है, ये जो elevation हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? Trapezius and the levator scapulae. And what is the action known as shrugging? This is shrugging of the shoulder. ठीक है, उसके बाद में जो middle fibers हैं, they will act along with the rhomboids, major and minor, and ultimately pull the scapula medially. Scapula medially कैसे pull होगा जब आप क्या करोगे? Retraction. This is what? Retraction. This is what? Protraction. This is elevation. So upper fibers तो elevate करवाएंगे, middle fibers क्या करवाएंगे? बोलो, retract. And lower fibers क्या करवाएंगे? Lower fibers pull medial border of scapula downward, depression, है ना? Depress करवा के जो spine है scapula का वो क्या होगा? Depress होगा. तो trapezium overall act करके ये सारे action करेगा. ऐसा नहीं कि individually actions होंगे, ये सारे एक्शन एट अ सिंगल टाइम होंगे जब ट्रेपेजियस एक्ट होगा. इज इट क्लियर? नाउ लास्ट इज अनदर एक्शन विच इज एन असिस्टेड एक्शन. असिस्टेड का मतलब है कि एक मसल के साथ मिलके एक और एक्शन कर सकता है. दैट इज इट एक्ट्स अलोंग विद द मसल ऑफ द लेटरल चेस्ट वॉल, दैट इज serratus anterior. It rotates the scapula forward so that the arm can be abducted beyond 90 degree. ठीक है, तो जो आर्म का एबडक्शन होता है ना, आपको पता है एबडक्शन कैसे होता है? आर्म का ऐसे होता है, बट बियॉन्ड 90 डिग्री जा रहा है ऐसे. ये बियॉन्ड 90 डिग्री है ना, यस? तो इसमें कौन एक्ट कर रहा है? serratus anterior along with trapezius acts to do this. तो आप ये एक्शन कर पाते हो ना? This is because of combined action of two muscles, that is trapezius and serratus anterior. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे एक्शन पता होने चाहिए. मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट आता है. ठीक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, latissimus dorsi. The next muscle of the same layer, superficial layer. This is the latissimus dorsi. You have already seen in the previous picture as well. Origin कहाँ से हो रहा है? इसका origin हो रहा है नीचे से पूरा, है ना? मतलब यहाँ पे इस region में हमारी back के, that is the region of the thorax as well as the lumbar region, thoracic and lumbar. So it is taking its origin from the iliac crest,
iliac crest is present on the top of the hip bone. hip bone का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है उसे बोलते हैं iliac crest. This is iliac crest. वहां से ओरिजिन है. The lumbar fascia, entire fascia covering the lumbar vertebrae, lumbar fascia, spines of lower 6 thoracic vertebrae, that is T7 to T12. Total 12 होते हैं ना, तो lower 6, then lower 3 और 4 ribs. नीचे के 3-4 ribs का मतलब क्या है? 9, 10, 11, 12 ribs. वहां से भी इसका origin है. And ultimately from scapula also, that is the inferior angle of the scapula. This is the inferior angle of the scapula. Now these landmarks are already known to you. आपको पता है what is inferior angle, so you can correlate. Insertion कैसा होगा? बड़ी मसल है तो इतने broad area से origin हो रहा है तो again ये converge हो जाएगी एक point पर और insert होगा कहाँ पर? कौन बताएगा? Anybody? Yes? It is getting its insertion on the humerus, and you have already studied the bicipital groove or the intertubercular sulcus on the humerus. And in the floor of the bicipital groove, what is attaching? The lady. Lady is attaching, na? Lady is what? Latissimus dorsi. And what are the two majors? Which lip? Pectoralis on which lip? Anteres on which lip? Yes. So that is the insertion. ठीक है? सबको याद है? I am very happy. Okay. Nerve supply की बात करते हैं. अगर इसकी nerve supply की बात करें तो ये आती है lumbar plexus से. Yes or no? Anybody can answer me from which cord of lumbar plexus? Oh, sorry, brachial plexus. I'm sorry. Which cord of brachial plexus? आपने brachial plexus पढ़ लिया है, and I think आपका revision भी हो चुका है. So which cord of brachial plexus ये nerve आएगी? Nerve to latissimus dorsi. Raise your hand and speak. ऐसे नहीं. Very good. Posterior cord of the brachial plexus. It is known as thoracodorsal nerve or nerve to latissimus dorsi, and you know the root value also C6, C7, C8. ठीक है? Action क्या है अब इसका? देखो सबसे बड़ा इसके नेम में ही एक्शन है. लैटिसिमस का मतलब है टू क्लाइंब अप, है ना? एंड डॉर्सा इज ऑन द बैक. दिस इज अ क्लाइंबिंग मसल. ये क्लाइंब करने में हेल्प करती है. तो क्लाइंब में हम कैसा एक्शन करते हैं? इस तरीके का एक्शन. तो ये जो एक्शन है ये कब होगा? देयर इज एक्सटेंशन. ये एक्सटेंशन हो गया ऑफ द शोल्डर जॉइंट और द आर्म. ये एक्सटेंशन हुआ. देन इट इज ऑल्सो डूइंग द एडक्शन. ये एडक्शन हो रहा है. एक्सटेंशन, एडक्शन. देन व्हाट एल्स? मीडियल रोटेशन. इस तरीके से. तो जब भी हम क्लाइंब करते हैं तो इस तरीके से कुछ करते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? पूरे स्कैपुला के 3 एक्शंस हो रहे हैं. एक्सटेंशन, एडक्शन एंड medial rotation, and ultimately this is leading to the action which is climbing the mountains or anything, whatever you are doing. Yes, so this is ultimately helping the raising of the trunk above the level of the arm. So this muscle is the muscle for climbing action. So this is an MCQ question. Which is the climbing muscle? Answer is latissimus dorsi. ठीक है? इस पिक्चर में आपने पहले ही देख लिया था, वापस से देख लो. This is again showing the origin and insertion of the latissimus dorsi. ठीक है? ये bicipital groove के फ्लोर में. ठीक है? इसके बाद आती है सेकेंड लेयर नाउ डीप मसल की, जिसमें हम बात करेंगे. अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. ये क्वेश्चन कई बार पूछा है वाइवा में और स्टूडेंट्स को नहीं आया है. एंड ड्यूरिंग डिसेक्शन ऑल्सो वंस वील स्टार्ट विद द डिसेक्शन वील सी दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. कहाँ लोकेटेड है ये ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन? बैक पे है. कहाँ? क्या बाउंड्रीज है? बिलो क्या है? हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी. मीडियली क्या है? लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीज. ये पूरी ट्रेपीजियस से देखो, ट्रेपीजियम शेप में. दिस इज एंटायर ट्रेपीजियस. ठीक है? ये क्या है आपका? मीडियल बॉर्डर ऑफ मीडियल बाउंड्री इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस. बिलो देयर इज प्रेजेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ द लैटिसिमस डॉर्सी. लेटरली क्या प्रेजेंट है? What is present laterally? Vertebral border of scapula, which is also known as the medial border. तो ये medial border of scapula है. ठीक है? Floor में क्या है? 6th and 7th rib. So this is a triangle. It is also having a content which is teres minor. वो भी है इसके अंदर, है ना? इसके content में होता है, but वो हमें याद नहीं रखना है. हमें ये पता होना चाहिए what is the significance of this triangle. At this triangle you can auscultate. How you auscultate? By using what? Stethoscope. ठीक है? इसमें हम क्या ऑस्कल्टेट कर सकते हैं? वी कैन ऑस्कल्टेट द एपेक्स ऑफ लोअर लोब ऑफ बोथ द लंग्स. तो जब भी
कोई भी क्लिनिशियन अगर बैक पे ऑस्कल्टेट करता है तो वहां पे वो क्या चेक करते हैं, लंग की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या कैपेसिटी है इस टाइम पे, क्या वॉल्यूम है, ठीक है. सो चेकिंग द लंग वॉल्यूम एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर इंस्पिरेशन वी डू द ऑस्कल्टेशन एट द ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. यहाँ पे हमें लंग की जो लोब्स होती हैं, अब आगे पढ़ोगे आप कि कौन से लंग में कौन कौन सी लोब्स है. देयर आर 2 लंग्स, राइट एंड लेफ्ट. राइट में 3 लोब्स हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स हैं. तो जो लोअर लोब है उसका एपेक्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑस्कल्टेट. तो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द मसल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर, दैट इज द लैटिसिमस डॉर्सा एंड द ट्रेपेजियस. ठीक है. Again the same picture for triangle of auscultation. You can clearly see rhomboideus major as a content over here. Now coming to the next set, that is your deep muscles. Deep में 3 muscles आएंगी आपके, आप तीनों देख सकते हो. इसमें से कुछ सारी चीजें बता रखी है as it is. This is the levator scapulae, this is the rhomboideus minor, this is the rhomboideus major. ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना स्कैपुला के अटैचमेंट में. सो आई डोंट वेस्ट मच टाइम ओवर द ओरिजिन एंड इंसर्शन. हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं. ओरिजिन कहाँ से हो रहा है लेवेटर स्कैपुली का? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ C1 टू C4 वर्टिब्रा. ठीक है, मतलब सर्वाइकल फर्स्ट टू सर्वाइकल 4 वर्टिब्रे की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. ठीक है, एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती है, बॉडी होती है, वर्टिब्रल कैनाल होती है, स्पाइनस प्रोसेस होती है, लेमाइना होता है, पेडिकल होता है. ये सारा एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है. जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वहां से ओरिजिन मिलता है लेवेटर स्कैपुली को, सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 4 वर्टिब्रे. ठीक है. इंसर्शन कहाँ होगा आपको पता है. विच बॉर्डर, लेटरल और मीडियल? हु इज सेइंग लेटरल? मीडियल बॉर्डर. ये इसमें पिक्चर में भी दिख रहा है. अगर याद नहीं हो तो यू कैन यूज योर IQ, इसमें भी देख सकते हो. ठीक है. This is the medial border and what is the extent from superior angle to the root of the spine. क्या अटैच होता है? levator scapulae. फिर उसके बाद जो इंसर्शन आता है वो किसका आता है? rhomboideus minor का. It is inserting exactly on the root of the spine. ये आप पढ़ चुके हो. और origin कहाँ से है? It is taking its origin from C7 and T1. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? Spinous process of C7 and T1. Rhomboideus major का कहाँ आएगा? Remaining area that is from the root till the inferior angle. This is rhomboideus major and it is taking its origin from the T2, T3, T4, T5 vertebrae. ठीक है. तो ये आप बहुत इजी है अगर आप ये पिक्चर याद कर लो तो. एक डायग्राम याद कर लोगे, सारा ओरिजिन इंसर्शन आपको याद हो जाएगा. ऑलरेडी आप स्कैपुला में भी पढ़ चुके हो तो इट इज नॉट अ बिग डील टू रिमेम्बर. ठीक है. तो लेवेटर स्कैपुली का दोबारा देख सकते हो पिक्चर. ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है एंड अल्टीमेटली इट इज इंसर्टिंग. नर्व सप्लाई क्या होगी? C3 and C4 spinal nerve. Also C5 spinal nerve through the dorsal scapular nerve. Which is dorsal scapular nerve? Another name? Brachial plexus पढ़ चुके हो. I don't want such response from you people. Because जो टॉपिक हो चुका है ना उसके बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए. Now it's high time. Orientation, introduction सब खत्म हो चुका है. Now be serious. You are first year MBBS students. Behave like that. बताओ dorsal scapular nerve का, also known as nerve 2. कौन बोल रहा है nerve 2 subclavius? That is NS, and it is taking its origin directly from the upper trunk. C5 is what? Nerve 2 rhomboid. कहां से होता है? कहां से origin होता है brachial plexus के? Root. Very good. It is taking the origin from the root. Any other nerve also taking origin directly from root of brachial plexus? Long thoracic nerve, that is nerve to serratus anterior. Please study. Otherwise, you will be in trouble. All of you will be in trouble. Currently, your seniors are in trouble. So, उनसे ही सीख लो. अभी उनकी हालत बहुत बुरी है. तो आप अपनी हालत वैसी मत करो. Is it clear? तो C5 कंपोनेंट जो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व का वो भी कंट्रीब्यूट कर देता है इसकी सप्लाई में. व्हाट इज द एक्शन ऑफ लेवेटर स्कैपुली? पहले में तो ये ट्रेपेजियस के साथ एक्ट कर रहा था. क्या कर रहा था? एलिवेशन. सो इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन एलिवेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द आर्म. तो यही इसका एक्शन है. लिगामेंटम न्यूके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन. आप पिक्चर जरूर देख सकते हो. यहाँ पे पूरे स्पाइन पे लिगामेंटम न्यूके अटैच है.
ठीक है, दिस इज द लिगामेंटम न्यूके। ये आप और डिटेल में कब पढ़ोगे, हेड एंड नेक में, तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ओके, रोम्बोइडियस मेजर माइनर का अभी हम ओरिजिन इंसर्शन पढ़ चुके हैं, पिक्चर में दोबारा देख सकते हो, ये रोम्बोइडियस माइनर है, ये मेजर है। व्हाट इज द नर्व सप्लाई, नर्व टू रोम्बोइडियस, दैट इज C5 डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। मेजर की भी वही है, माइनर की भी वही है, ठीक है। व्हाट इज द कंबाइंड एक्शन ऑफ बोथ, दोनों का जो एक्शन है ना साथ में होगा, इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेंगे, दे विल एक्ट ऑल टुगेदर। सो व्हाट एक्शन दे आर परफॉर्मिंग, दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, दिस इज द रिट्रैक्शन जिसमें जो मीडियल बॉर्डर है वो एक्ट करती है, यस। सो दिस इज द रोम्बॉइड्स वर्क कलेक्टिवली, ठीक है, with the levator scapulae to elevate the medial border of the scapula downwards and rotating the scapula with respect to the glenohumeral joint. तो जो रोटेशन होता है ना at the glenohumeral joint, whether it is medial rotation or lateral rotation, तो इसमें क्या होता है, स्कैप्यूला की जो मीडियल बॉर्डर है उसको स्टेडी करना पड़ता है, that is done by levator scapulae, and there is a retraction also which is completely done by the rhomboid. तो तीनों एक्ट साथ में करेंगे, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडियस मेजर एंड माइनर, एंड अल्टीमेटली दे विल हेल्प इन द रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ द स्कैपुला अलोंग विद द स्टेडीनेस। ऐसा नहीं है कि रोटेशन होगा तो स्कैपुला बाहर निकल जाएगा, नो, वो अपनी जगह पर रहेगा, स्टेडी रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एक्शन, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम टेकन फ्रॉम द ग्रेज एनाटॉमी एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज द रोम्बोइडियस मेजर, दिस इज माइनर एंड दिस इज द लेवेटर स्कैपुली, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सेट, दैट इज द मसल्स ऑफ द बैक विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज, सी today's lecture is a very long lecture which I have to cover in 1 hour, that is next to impossible, so I am trying my best कि मैं जितना जल्दी कर पाऊँ उतना कर लेती हूँ, and I don't know why all the long topics are in my bucket only, इतने सारे, और 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बात करेंगे फटाफट से स्कैपुलोह्यूमरल मसल्स की, ठीक है। स्कैपुलोह्यूमरल मसल का क्या मतलब है, द मसल्स विच आर कनेक्टिंग द स्कैपुला टू द ह्यूमरस, एंड पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर कौन सी थी, द मसल्स विच आर कनेक्टिंग द वर्टिब्रल कॉलम टू द स्कैपुला, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो एक में तो क्या हुआ, वर्टिब्रल कॉलम को स्कैपुला से कनेक्ट किया, है ना, फिर स्कैपुला किससे कनेक्ट हो रहा है, ह्यूमरस से। So scapula is the girdle. It is a connecting link between the two skeletons, that is the axial and the appendicular. ठीक है, तो इसमें मसल्स देखो कौन कौन सी है, deltoid, have you heard about this muscle? Very very important muscle clinically also. अब क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। Then supraspinatus, सुना ये नाम, infraspinatus, teres major, teres minor and subscapularis, ये सारी मसल्स आपने कहाँ पढ़ी हैं, स्कैपुला। तो जब स्कैपुला पढ़ लिया है तो इन सबका ओरिजिन इंसर्शन आता होगा, so I don't waste time in discussing the original insertion, we'll just read it very fast. सबसे पहले डेल्टॉइड अच्छे से पढ़नी है, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है। I can hear some of the students talking over there. If you are not interested, please leave, but don't disturb me during the class. This is the last warning for the entire 2023 batch. Otherwise I'll leave the topic and you'll do it yourself. No problem. मेरी साइड से खत्म। Don't disturb, जो भी डिस्कशन करना है क्लास के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो, ठीक है। डेल्टॉइड का जो ओरिजिन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसके फाइबर्स बहुत हैं। Why so? Because deltoid is what type of muscle? Multipennate type of muscle. So since it is a multipennate muscle, it is having 3 sets of fibers, that is the anterior fibers, middle fibers and posterior. शेप इसका कैसा है, डेल्टा शेप, नाम क्या है, डेल्टॉइड। सो इन्वर्टेड डी शेप जो होता है ना, दैट इज डेल्टा शेप, उस शेप की ये मसल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज 3-in-1 मसल, क्योंकि इसमें 3 सेट्स हैं फाइबर्स के जो कलेक्टिवली एक साथ एक ही जगह पे क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस मसल को 3-in-1 मसल भी कहा जाता है। ओके, नाउ we'll talk about the origin one by one. सबसे पहले anterior fibers जो है वो unipennate होते हैं। कैसे होते हैं, unipennate, and they are also known as clavicular part of the deltoid because it is taking its origin from the clavicle. Which part? Anterior aspect of lateral 1/3. तो clavicle आपकी जो है कहाँ पर है, scapula के आगे. This is the clavicle which has been shown like this ताकि आप समझ पाओ। तो anterior aspect of lateral 1/3 of the clavicle is giving origin to the एंटीरियर यूनिपेन्नेट फाइबर्स। फिर उसके बाद जो मिडिल मल्टीपेन्नेट फाइबर्स हैं
वो आपके एक्रोमियन पार्ट से ओरिजिन लेंगे. दिस इज द एक्रोमियन पार्ट, एक्रोमियन प्रोसेस और द एक्रोमियन पार्ट ऑफ द स्कैपुला. So this is taking origin from the lateral border of the acromion. तो इसी वे में भी एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि बहुत डिटेल्ड होता है, तो इतना भी याद रह जाए तो बहुत है. तो सेकंड पार्ट को मैं क्या बोल रही हूँ, एक्रोमियन पार्ट. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो. फर्स्ट पार्ट क्लैविकुलर पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड इज एक्रोमियन, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड इज पोस्टीरियर एंड यूनिपेन्नेट. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनस पार्ट. So it is taking origin from the lower lip of the spine of the scapula. Why not upper lip? अपर लिप से क्या ओरिजिन हो रहा था, वेरी गुड, ट्रेपीज. ठीक है, तो लोअर लिप से क्या ओरिजिन हो गया, डेल्टॉइड. अब आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन कितना ज्यादा वास्ट है, एंड इट इज ऑलमोस्ट ओरिजिनेटिंग लाइक दिस. तो ये जो ओरिजिन है ना इस तरीके से, इसका क्या मतलब है, इट इज गिविंग अ काउंटूर टू द शोल्डर. तो हमारे शोल्डर पे जो राउंडेड काउंटूर बन रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ डेल्टॉइड. सो इफ डेल्टॉइड इज पैरालाइज्ड, then in that case you will lose the contour. So in case the deltoid is paralyzed, you will lose the contour. A very important question that could be asked in the viva. इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंसर्शन की. आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इंसर्शन एक V शेप इंसर्शन के फॉर्म में हो रहा है. कैन यू सी दिस V? This is inserted on a landmark located on the humerus. पढ़ा है ना ह्यूमरस, क्या लैंडमार्क था, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. कहाँ पे होता है, शैफ्ट पे होता है. ठीक है, तो दिस इज अल्टीमेटली इंसर्टिंग बाय द हेल्प ऑफ अ वी शेप टेंडन, वेयर इट इज इंसर्टिंग ऑनटू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, मिडिल ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शैफ्ट. ना, लेटरल साइड में, मिडिल में क्या हो जाएगा हमारा इंसर्ट, डेल्टॉइड. और इसका लैंडमार्क भी है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और कहीं नहीं होगा, है ना. तो ओरिजिन हो गया स्कैपुला से और इंसर्शन हो गया ह्यूमरस. So this is the rounded contour which you can see, and देखो inverted D shape में है. This is the deltoid. You can see the muscle. Yes, ये मसल अब बहुत सारी चीजों को कवर कर लेगी क्योंकि काफी वास्ट है. तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है वो हमको पता होने चाहिए. इसके अलावा फाइबर्स भी एक बार देख सकते हो. देखो फाइबर्स का ऐसे अरेंजमेंट है. You can clearly see this is the acromion process. ठीक है, these are the three fibers, unipennate, and these are the multipennate fibers of the deltoid. Ultimately getting its origin from the clavicle, from the acromion and the spine, and ultimately getting attached on the tuberosity of the deltoid. ठीक है, नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व कौन सी कॉर्ड से आती है, किसने बोला है लेटरल, वेरी बैड. पोस्टीरियर कॉर्ड. लेटरल कॉर्ड से सिर्फ दो मेन मसल्स आती है, मेन नर्व्स आती है, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड द मीडियन लेटरल रूट, वो भी पूरा नहीं. ठीक है, और पोस्टीरियर कॉर्ड से जो दो आती है वो कौन कौन सी है, एक्सिलरी एंड रेडियल, मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, सो एक्सिलरी नर्व दैट इज C5 एंड C6 इज द रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व. इट इज द मेन नर्व ऑफ सप्लाई टू द डेल्टॉइड. ठीक है, एक्शन क्या है, तीनों का अलग है. एंटीरियर फाइबर्स, फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन. व्हाट इज द फ्लेक्शन एट द शोल्डर जॉइंट, लाइक दिस. दिस इज डन बाय डेल्टॉइड. मीडियल रोटेशन इस तरीके से, मीडियल ये रोटेट हो गया, मीडियली मीडियल रोटेशन. ठीक है, मिडिल फाइबर्स क्या करेंगे, एब्डक्शन, मतलब यहां से नहीं, यहां से यहां तक ले जाने के लिए दूसरी मसल है. समझ रहे हो, एब्डक्शन भी डिफरेंट डिग्रीज में होगा. तो आप जब शोल्डर जॉइंट पढ़ोगे तो उसमें आप मूवमेंट्स पढ़ोगे स्कैपुला के. तो ये जो है ये 0 डिग्री है, यहां से यहां तक आया 0 to 15 डिग्रीज. ये डेल्टॉइड नहीं करेगा. डेल्टॉइड क्या करेगा, फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, यहां तक. ये वाला जो काम है ये कौन कर रहा है, डेल्टॉइड. इसके बाद जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं इसी डेल्टॉइड के, वो एक्सटेंशन करेंगे और फिर मीडियल रोटेशन. तो मीडियल रोटेशन तो ओवरऑल डेल्टॉइड करता ही है, साथ में एडक्शन एज वेल एज द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज परफॉर्म बाय द वेरियस फाइबर्स. ठीक है, तो इसके भी आपको एक्शन याद होनी चाहिए. ठीक है, तो टेबल बना के वो भी आप कर लेना. नाउ व्हाट कम्स अंडरनीथ द डेल्टॉइड, वो हमें पता होने चाहिए. तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है. ये है बर्सा, दिस इज सब डेल्टॉइड बर्सा, this is subacromial bursa. You can also see underneath there is the coracoid process. Yes, acromion process, ये bony part है. ठीक है, तो क्या क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं. स्ट्रक्चर्स अंडर कवर बाद में हम सर्जिकल पढ़ेंगे. तो स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड, ये सेम टॉपिक आप लोअर लिम्ब में भी पढ़ोगे. स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ ग्लूटियल मसल. ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस.
ये दोनों चीजें इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि इन दोनों की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस सेम है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। पहले क्या क्या आ रहा है बोन्स में, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, कोरिकॉइड प्रोसेस, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। बर्सा में सब डेल्टॉइड, सब एक्रोमियल बर्सा। मसल्स में जो अटैच रहेंगी शोल्डर जॉइंट के अराउंड वो सारी मसल्स, दैट इज द रोटेटर कफ मसल्स। देन वेसल्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स पड़ी है, किसमें, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, नर्व्स एक्सिलरी, ठीक है। नाउ कम टू द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टॉइड। व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? गिविंग इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, so the site of choice in upper limb is the deltoid. अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को देना है तो हम कहाँ देंगे? डेल्टॉइड, बिकॉज इट इज अ वेरी वाइड मसल, इसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, तो इजीली द फ्लूइड कैन बी एब्सॉर्ब्ड। यस, so that's why the muscle of choice is deltoid. What about the lower limb? It is the gluteal muscles, gluteus maximus, medius, minimus. ये जो muscles हैं gluteal region में, these are known as gluteal muscles. तो वो muscle of choice है in the lower limb. तो ये दो ही जगह हैं बॉडी में जहां पे इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रावीनस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रामस्क्यूलर। तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज द एरिया वेयर द इंजेक्शन इज गिवन, इंजेक्शन साइट ऑफ द डेल्टॉइड। हियर आल्सो यू कैन सी हाउ द इंजेक्शन इज गिवन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये पूछा ही जाता है अगर डेल्टॉइड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम। ओरिजिन कहां से होगा सुप्रास्पाइनेटस का? सुप्रास्पाइनस फोसा कहां मिलता है? कौन से सरफेस पे? डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल सरफेस अबव द स्पाइन, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। क्या है इसका इंसर्शन सुप्रास्पाइनेटस का? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस का ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, साथ में होती है ना, और एक कौन सी होती है? टीरीज मेजर और माइनर? मेजर कहाँ होती है? मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ना, तो इट इज जस्ट अ रिविजन। नर्व सप्लाई क्या होगी? सुप्रास्कैपुलर नर्व, दैट इज C5 C6। सुप्रास्कैपुलर नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्रास्कैपुलर कहां से ओरिजिनेट होती है? किसने बोला अपर ट्रंक? रेज योर हैंड। अरे सही जो बोल रहा है कम से कम उसके लिए तो क्रेडिट लो। यस, इट इज अपर ट्रंक। टू नर्व्स ओरिजिनेट, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सप्यूबियस, ठीक है। देन एक्शन क्या है? एबडक्शन ऑफ द आर्म एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ द शोल्डर जॉइंट। और कौन सा एबडक्शन? जो डेल्टॉइड नहीं करती थी, ये वाला इनिशिएशन 0 to 15 डिग्री। तो 0 to 15 डिग्रीज पे कौन लेकर आएगा? सुप्रास्पाइनेटस। पे कौन लेके जाएगा आगे? डेल्टॉइड। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। इसका अटैचमेंट आपको पता है, ओरिजिन आपको पता है, इंसर्शन आपको पता है, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है? सेम, सुप्रास्कैपुलर नर्व, बट आफ्टर पासिंग थ्रू द सुप्राग्लिनोइड नॉच। वो नॉच थी ना स्कैपुला पे, उससे पास करने के बाद, ठीक है, इसको सप्लाई कर देती है। ये क्या करेगा? लेटरली रोटेट्स आर्म, not the medial rotation, now the lateral rotation of the arm and ultimately stabilizing the shoulder joint, ठीक है। Next, teres major, you already know the origin of teres major। कहां से होता है origin teres major का? lower third of lateral border of scapula। अब medial border की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम lateral border पे आ चुके हैं। तो lateral border का जो lower third है, ठीक है, ये पूरा lower third, यहां से क्या origin हो रहा है आपका? teres major, ठीक है। इंसर्शन कहां हो रहा है? ऑन द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? डिफरेंट है, दैट इज लोअर सबस्कैपुलर नर्व। विच कॉर्ड? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, लोअर सबस्कैपुलर नर्व C5 C6 C7, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ टीरीज मेजर? इट इज मीडियली रोटेटिंग and adducting the arm, adduction and medial rotation of the arm for stabilization of the shoulder joint। अभी ये जितनी भी मसल्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सेम रिपीट होंगी शोल्डर जॉइंट में। तो वहां पे अगर जो फैकल्टी क्लास ले रही है और आपने आंसर नहीं किया, इट वोंट बी गुड, बिकॉज वी आर सॉर्टिंग यू एवरीथिंग हियर। ब्रेकियल प्लेक्सस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अब आपका चल रहा है बैक एंड स्कैपुलर रीजन, अब सेम रिपीट होगा शोल्डर जॉइंट।
जब मूवमेंट पढ़ोगे तब ये सारी मसल्स वापस से आ जाएंगी, ठीक है। teres minor, origin again from upper 2/3 of the which border? Lateral border. upper 2/3 यहाँ से upper 2/3 of the lateral border of the scapula. lower 1/3 से कौन थी? teres major, ठीक है। और इसका इंसर्शन कहाँ है? अगेन द सेम ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। तो कौन कौन सी मसल ग्रेटर ट्यूबरकल पे आ गई? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। सिट मसल, SIT, सिट, सिट मसल, और सिट का पूरा है सिट, तो एक मसल बच रही है, वो किस पे आ जाएगी? लेसर ट्यूबरकल। तो ओवरऑल द 2 ट्यूबरकल्स गिव अटैचमेंट टू सिट मसल, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी है एक्सिलरी, इसमें आपको लोअर सबस्कैपुलर नहीं लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि मेजर को भी जो सप्लाई करेगी वो माइनर को करेगी, मेजर को अलग सप्लाई कर रही है लोअर सबस्कैपुलर, और माइनर को कौन सप्लाई करेगी? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व से 2 मसल सप्लाई होती हैं, कौन सी? डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर, ये याद रखना है, ठीक है। एक्शन क्या है? इट लेटरली रोटेट्स द आर्म एंड स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट। तो लेटरल रोटेशन होगा, ठीक है, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द shoulder joint. Now see this picture, it gives the summary of all the muscles. You can clearly see supraspinatus, infraspinatus, teres major, teres minor. ये minor है, ऊपर से upper 2/3 से और नीचे lower 1/3 से teres major on the lateral border. और देखो इन सबका insertion greater tubercle, supraspinatus, infraspinatus and teres minor, ठीक है। और teres major का कहाँ हो रहा है? Bicipital. Subscapularis taking origin from the subscapular fossa which is located on which surface of scapula? Costal surface, जहाँ पे आपको ridges मिलती है ना, आपको impressions मिलते हैं costa के, ribs के, वहां पर, ठीक है, digitations भी मिलते हैं, ठीक है। तो this is the subscapularis, इसका insertion होगा lesser tubercle of the humerus. What is the nerve supply? It is supplied by both upper and lower subscapular. Upper is also a branch from which cord? Posterior cord of brachial plexus, ठीक है। एक्शन मीडियली रोटेटिंग द आर्म एंड स्टेबलाइजिंग द शोल्डर जॉइंट। तो मीडियल एंड लेटरल रोटेशन जो है वो ऑलमोस्ट यही मसल्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। सबस्कैपुलारिस हो गया, ये देख लो पूरा इसका सबस्कैपुलारिस का लेसर ट्यूबरकल, ओरिजिन एंड इंसर्शन। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस विल ऑल्सो बी टॉट इन द शोल्डर जॉइंट। तो मैं अभी उसका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, डिटेल में कवर नहीं कर सकती, दैट विल बी कवर्ड इन शोल्डर जॉइंट। व्हाट इज रोटेटर कफ? इट इज आल्सो नोन एज मस्कुलोटेंडिनस कफ। रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स which are attached to the shoulder joint. And why it is present? Because you already know that shoulder joint is a ball and socket type of joint, yes, and the shoulder joint is having a head of the humerus which is very very broad, and you are having a shallow glenoid cavity. अब कैविटी है शैलो और हेड है बड़ा, अकोमोडेट करना है, तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी? कुछ मसल्स होंगी जो उसको एक कफ की तरह कवर करके रखेंगी ताकि जो शोल्डर जॉइंट में हेड है वो डिसलोकेट नहीं हो जाए। तो हेड ऑफ ह्यूमरस शुड नॉट डिसलोकेट ड्यूरिंग द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द आर्म, ठीक है। तो इस वजह से ये रोटेटर कफ प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्म बाय 4 मसल्स, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, सिट्स मसल्स। तो ठीक है, रोटेटर कफ में हमारे सिट्स मसल्स आ जाएंगे। अब देख सकते हो ये सारे मसल्स। द मेन एक्शन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये जो कफ है इंफीरियरली नीचे की तरफ डेफिशिएंट होता है, तो वहां पे थोड़ा वीकनेस हो सकता है जॉइंट का, अदरवाइज इट इज कवरिंग द एंटायर जॉइंट। सो सी दिस पिक्चर, ये तो सारी मसल्स हैं, आपने अभी देख रखी हैं, वापस से मैंने पिक्चर डाली थी। सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपको एग्जाम में बनाना है रोटेटर कफ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। This is the glenoid cavity, labrum of the glenoid cavity is present over here, glenoid labrum. Then you can clearly see this is the posterior aspect, this is the anterior aspect and that is the superior aspect. तो superiorly कौन सी मसल है? supraspinatus. Anteriorly कौन सी मसल है? subscapularis. और posteriorly कौन सी है? infraspinatus and teres minor. All of them covers the joint just like a cuff and they are giving stability to the shoulder joint. समझ में आ गया? इनका मेन एक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द शैलो ग्लिनॉइड कैविटी एंड ब्रॉड हेड ऑफ ह्यूमरस विच इज अकोमोडेटिंग एंड फॉर्मिंग अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट, ठीक है। सो दिस स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर हाउ दीज आर अटैच्ड. Stop discussing
during the class. Now comes the next topic, which is again very important for your short notes in theory examination. These are known as subscapular और intermuscular spaces. ठीक है, ये भी डिसेक्शन के टाइम पे हमें निकालने हैं, समझ रहे हो? डिसेक्शन जब करोगे उस टाइम पे हमें इंटरमस्कुलर स्पेसेस ढूंढने हैं ड्यूरिंग द डिसेक्शन एंड उनके कंटेंट्स निकालने हैं, और ये बहुत अच्छे से मिलता है जब हम बैक का डिसेक्शन करते हैं. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज स्पेसेस, ये टोटल 3 होते हैं, 3 नंबर. आउट ऑफ देम one is quadrangular space and rest two are upper and lower triangular spaces. ठीक है, if I talk about this space, this is quadrangular, this is upper triangular, this is lower triangular. तो हमें इनकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस की. क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज बाउंडेड. सुपीरियरली कौन सी मसल है, आप बता सकते हो? ये कौन सी मसल है सुपीरियरली? टीरीज माइनर. ठीक है, इंफीरियरली कौन सी मसल है? दिस इज टीरीज मेजर. ठीक है, मीडियली क्या प्रेजेंट है? द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. ये ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है ना? ट्राइसेप्स इज अ मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म. और लेटरली क्या है? इट इज द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. So this is the space which is formed over here, quadrangular space. तो ये boundaries पता होनी चाहिए. What are the contents? It is very important. It transmits the axillary nerve. MCQ question. ठीक है, and posterior circumflex humeral artery. It is a branch of third part of axillary artery. Very good. ठीक है. So this is quadrangular space. Can you see the boundaries all nicely? Teres minor, teres major. This is long head of triceps. This is the surgical neck of humerus. ठीक है. Now see the next, upper triangular space. कुछ बुक्स में इसको medial triangular space भी कहा है, जो गलत नहीं है. Why? Because the upper triangular space is located medially. ये lateral है, ये medial है. ठीक है, तो इसको medial triangular space भी कहते हैं, बट आप preferably upper triangular space ही यूज करना. और ये lower triangular space है, इसको lateral triangular space भी कहते हैं. ठीक है, इसकी बाउंड्रीज क्या है? teres minor superiorly, teres major inferiorly, long head of triceps laterally, and content is circumflex scapular vessels, artery and vein. ये कौन सी वेसल है? circumflex scapular. कौन से पार्ट की है? एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की तो है. यस, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी द बाउंड्रीज ओवर हियर ऑल्सो. कौन सी मसल है? टीरीज माइनर. नीचे कौन सी है? टीरीज मेजर. और लेटरली क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. ट्राइंगल है तो 3 ही तो बाउंड्री होंगी, चौथी तो होगी नहीं. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगुलर स्पेस. लोअर ट्राइंगुलर स्पेस में हम देख सकते हैं बाउंड्रीज है टीरीज मेजर सुपीरियरली, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मीडियली एंड ह्यूमरस लेटरली. ठीक है, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लोअर ट्राइंगुलर स्पेस, दैट इज radial nerve and profunda brachiae artery, which is a branch of brachial artery, which is the artery of the arm, front of the arm, and profunda brachiae artery is the artery of back of the arm. तो ब्रांच है किसकी? ब्रेकियल आर्टरी की है. ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेस लोअर ट्राइंगुलर. सी द बाउंड्रीज, सुपीरियरली टीरीज मेजर, मीडियली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड लेटरली इज द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, ये हो गए तीनों स्पेसेस और उसके कंटेंट. इसके बाद में अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें नहीं मिस करना है, दैट इज एक्सिलरी नर्व. क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एक्सिलरी नर्व है क्या और इसकी क्या ब्रांचेस हैं. कोर्स में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप बुक में से पढ़ सकते हो कि ये कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है, कहाँ मूव करती है. इतना टाइम नहीं है क्लास में, बट एटलीस्ट वी कैन डिस्कस द ब्रांचेस. पहले मुझे बताओ इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्सिलरी नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? आर्टरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्सिला में. नर्व बताओ. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट इज हैविंग अ रूट वैल्यू C5 C6. ठीक है, इसके बाद ये पूरा इसका कोर्स दे रखा है. इट पासेस बैकवर्ड्स, एंटर्स द क्वाड्रेंगुलर स्पेस. अभी हमने कंटेंट में देखा था ना. यस, विद अलोंग विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. फिर ये नर्व पास करेगी थ्रू द स्पेस. इट कम्स क्लोज रिलेशनशिप विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड विद द मीडियल साइड ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. Now, after that what happens? Now it will give
at last along the medial side of surgical neck of humerus, यहाँ पहुंचने के बाद it terminates by dividing into two branches, that is the anterior and posterior branches. ठीक है, इसका कोर्स बहुत शॉर्ट है क्योंकि अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हम इस आर्टरी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साइड में आर्टरी मिलती है. इट इज रिलेटेड विद डायरेक्टली विद द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. ये पिक्चर देखो, ये टीएस लिया गया है एट द लेवल ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस nerve and artery both together. This is the axillary artery, this is the axillary nerve. ठीक है, अब ये जो nerve है इसकी दो ब्रांचेस है, जिसमें से ये वाली है आपकी एंटीरियर ब्रांच, क्योंकि ये पूरा कोर्स कवर करने के बाद मैंने आपको बताया वो पिक्चर है. ठीक है, और ये है पोस्टीरियर ब्रांच. एंटीरियर ब्रांच से एज सच ओनली वन ही मसल सप्लाई होगी. कौन सी मसल है? डेल्टॉइड. बट द पोस्टीरियर ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गिविंग ब्रांचेस टू अ मसल दैट इज teres minor. But before giving a branch, can you see this structure? This is known as pseudoganglion. Anybody knows what is a pseudoganglion? False ganglion. Pseudo means false. What is ganglion? It is a collection of cell bodies. ठीक है, pseudo का मतलब क्या है कि collection तो होगा nerves का, fibers का collection होगा, but उसमें cell body मतलब soma नहीं होगा, तो क्या होगा? Axons. So pseudoganglion is a collection of nerve fibers with only having axons. तो जब ये नर्व टीरीज माइनर को सप्लाई करती है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच, उससे पहले ये एक स्यूडोगैंग्लियन देती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वाइवा क्वेश्चन. सो नर्व टू टीरीज माइनर इज एक्सिलरी एंड दिस नर्व आल्सो हैज अ स्यूडोगैंग्लियन. नर्व टू डेल्टॉइड इज अगेन एक्सिलरी. मैंने पहले भी बताई आपको ये चीज. इसके अलावा एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है टू द अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. सो जो क्यूटेनियस इनोवेशन है इन द अपर लेटरल आर्म, मतलब आप कह सकते हो अपर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म, यहाँ पर जितना भी क्यूटेनियस इनोवेशन है ये सारा किससे आता है? फ्रॉम द क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ एक्सिलरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ विच डिवीजन? एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर डिवीजन. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसकी ब्रांचेस है और इसकी सप्लाई है. ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है, आई एम नॉट रीडिंग दैट. नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट. इफ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल एस्पेक्ट, दिस नर्व कैन बी इंजर्ड. कब? सर्जिकल नेक के अराउंड प्रेजेंट है तो या तो डिसलोकेशन हो जाए हेड ऑफ ह्यूमरस का, तब ये इंजर्ड हो सकती है, या फिर कोई और इंजरी हो सर्जिकल नेक पे तो ये क्या हो सकती है? डिसलोकेट. वो बोन अगर डिसलोकेट होती है, इंजरी होती है, तो नर्व भी क्या हो जाएगी? इंजर्ड या कंप्रेस हो सकती है. ठीक है, तो एक ही क्लिनिकल एस्पेक्ट है इसका, दैट इज इट कैन बी इंजर्ड ड्यूरिंग द डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस और ड्यूरिंग एनी सर्जिकल और मैकेनिकल इंजरी टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, नेक्स्ट नर्व इज सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आप ऑलरेडी ब्रेकियल प्लेक्सस में इसका ओरिजिन पढ़ चुके हो. इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट इज बेसिकली एंटरिंग इनटू द स्कैपुला थ्रू द स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच. ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला. इसके लिए बस एक पिक्चर देखनी है एंड यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है? एनास्टोमोसिस का मतलब है कम्युनिकेशन. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश, प्लीज डोंट टॉक एंड मेंटेन साइलेंस फॉर 5 minutes. आई नो इट्स 1 o'clock बट इट इज द टॉपिक विच इज रिमेनिंग, तो वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. 5 minutes यू कैन जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनास्टोमोसिस? इट इज अ कम्युनिकेशन. एनास्टोमोसिस का मतलब ये है region of the scapula, if there is anastomosis between the different arteries coming from various branches, they will have a rich blood supply. और अगर उस एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छी होगी then definitely वहां पर क्या होगा? chances of any necrosis or ischemia will be less. ठीक है, तो rich nerve supply, rich arterial supply हमको मिलती है in the region of the scapula. तो आप देख सकते हो ये scapula है and you can clearly locate the branches. So it is the branches from the axillary artery, first part, second part, third part, that are participating in the arterial anastomosis. और कौन सी artery participate करती है? Subclavian artery. Axillary artery is a continuation of subclavian artery, you all know that. But the subclavian artery itself also participates in this particular branching pattern. ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी branches आ रही हैं, basically the thyrocervical trunk from the axillary artery, from the subclavian artery, that is participating in the
formation of the arterial anastomosis. Can you see the thyrocervical trunk here? This is the thyrocervical trunk and these are the branches coming from the various parts of the axillary artery. ठीक है, first part, second part, and you can clearly locate posterior circumflex. You can locate thoracoacromial. Thoracoacromial कौन से part की है? Second part, also known as lateral thoracic artery. ठीक है, इसके अलावा आपको डीप ब्रांचेस है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी के, वो भी पार्ट लेते हैं. सब स्कैपुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी भी पार्ट लेते हैं. तो जितनी भी सब क्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं वो सब पार्ट लेके क्या बना देती हैं? आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ड्यू टू विच देयर इज अ कम्युनिकेशन एंड अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई गिवन टू दैट रीजन. ठीक है, so this is all about your scapular region and the back. Now wait for the attendance.